Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So we will start our new lecture, work power energy ka, maybe this will be the last lecture. So in this lecture we will see some small topics, ठीक है? सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे which is related to the topic we studied in last lecture. So हमने उसमें देखा था कि कैसे we were conserving the mechanical energy conservation से we were solving some problems, है ना? तो अब यहाँ पे एक उसी में एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आई एम सॉरी, दिस स्प्रिंग इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इज इन इट्स नेचुरल लेंथ. इनिशियली द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ. One block of mass 10 kg is moving with some velocity v, which is its distance 0.5 meter from this spring, ठीक है, and it is moving with velocity v, and in this part coefficient of friction is 0.3. Coefficient of friction is 0.3. It is given that maximum compression in the spring is 0.5 meter. Maximum compression in the spring is 0.5 meter. Then we have to find out the velocity of the block. With what velocity this block was coming. ठीक है, ये हमें find out करना है. अब पहले अगर इसी क्वेश्चन में ये गिवन होता कि there is no friction, तो हम कैसे करते? Initially its velocity is v, this distance is 0.5 meter and maximum compression is 0.5 meter. Maximum compression is 0.5 meter. Then how we will do it? कैसे करेंगे इसको? So initial energy, there is no loss. Only conservative forces are working. So there is not going to be any loss. When there are non-conservative forces, तब वहाँ पे loss की situation बनती है. Like friction है, air resistance है, there will be some loss. Some of the energy will get out of the system as heat or sound. ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या है? Initially energy है half initial kinetic energy plus initial potential energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy. So initial kinetic energy is half mv square plus initial potential energy of the system is 0. Final kinetic energy, अब यहाँ पे क्या होगा? Maximum compression will happen when the velocity of block will become 0. क्या होगा? Velocity v है, ये धीरे धीरे उधर जाएगा, its velocity will decrease and it will come to rest and then it will start coming back in the opposite direction. तो हमें कौन सी कंडीशन लेना है? When its velocity has become 0, वो कंडीशन हमें लेनी है. तो यहाँ पे क्या होगा? Finally its velocity has become 0 when compression is maximum. तो there is only one energy, half mv square is gone now. So only one energy is there, that is half kx square. So is equal to half kx square and k is 100 Newton per meter. यहाँ पे भी k is 100 Newton per meter, ठीक है. So maximum compression is given as x max is given as 0.5. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, m पता है, v नहीं पता, बाकी सब कुछ पता है. We can find out the velocity. So half से half cancel, m is 10, v square is equal to k is 100, ये आ गया 0.25. तो ये हमारे पास आ गया v square is equal to 25/10 का रूट, ठीक है. v is equal to रूट 25/10. क्लियर है? So like this we did. यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया? Initial total mechanical energy is equal to final total mechanical energy. मतलब u initial plus k initial is equal to u final plus k final. That we did. अब in this case there is some loss. तो हमें कैसे solve करना है इसको? तो यहाँ पे क्या है भाई? There are three forces. There are two forces. एक spring force, दूसरा friction force. And it has some initial kinetic energy. तो यहाँ पे क्या है? Initially there is only kinetic energy, no potential energy in the system. So initial kinetic energy is half m into v square. Clear है? Initial kinetic energy is half m v square. Now what is going to happen when this block will move in this direction? There will be some work done by friction because friction is present. So there will be some work done by friction, and whatever is the work done by friction, that much amount of energy will be out of the system. वो energy system से बाहर चली जाएगी. Clear? Now whatever work is done by this force, friction force, that much amount of energy is going out of the system. वो क्या हो गया? Energy loss हो गया. Now in the system finally क्या हुआ? Final condition is when the compression is maximum. It means block has come to rest. So in that situation what we have
energy stored in the spring. Energy of this block is 0 and some work has been done by the friction force. Clear है? तो यहाँ पे हमारे पास है some initially we have some mechanical energy, ठीक है, we have some loss and we have some final mechanical energy. So how we can relate these energies? So we can write initial mechanical energy minus loss. Initially whatever energy was there in the system माइनस उसमें से हमने लॉस को हटा दिया तो फिर क्या बचेगा? दैट विल बी द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो व्हाटएवर टोटल एनर्जी वाज देयर इनिशियली उसमें से लॉस को सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एंड नाउ वेयर दिस फाइनल एनर्जी हैज स्टोर्ड initial energy, this block had some initial energy, some of the energy has been lost because of the work done by friction force. तो अब क्या हुआ? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी थी उसमें से कुछ लॉस हो गया. नाउ व्हाटएवर एनर्जी इज देयर इन द सिस्टम दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. क्लियर है? तो यहाँ पे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस लॉस क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर. क्लियर ये चीज? इनिशियली व्हाटएवर, अब अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, मान लो ये ब्लॉक ऊपर से आ रहा होता, ऐसे आता और फिर ऐसे आके कंप्रेस करता, देन देयर विल बी सम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आल्सो. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? पहले राइट व्हाटएवर एनर्जी इज देयर इन द सिस्टम माइनस लॉस इज द फाइनल एनर्जी इन द सिस्टम. क्लियर है ये चीज? तो डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम. अगर कहीं पे फ्रिक्शन आ जाए, एयर रेजिस्टेंस आ जाए, कैन वी डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? हाँ. एयर रेजिस्टेंस वाला और एक प्रॉब्लम हमने एकदम शुरू में किया था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाला कांसेप्ट लेकर के हमने किया था. दैट सेम प्रॉब्लम कैन बी डन विद दिस कांसेप्ट आल्सो. क्या करेंगे यहाँ पे? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस लॉस ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस equals to final mechanical energy in the system. Now देख लो कि initially mechanical energy was stored in which form? So in this case initial mechanical energy is stored in the form of kinetic energy. Final mechanical energy is stored in the form of spring potential energy. So now we can solve the problem. Half m v square minus what will be the work done by friction? Work done by friction will be friction. यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? भाई ब्लॉक इज मूविंग, फ्रिक्शन विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो म्यू एम जी एक्स, म्यू एम जी एक्स, दिस इज म्यू एम जी एक्स क्या होगा? 0.3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. हाँ, अब यहाँ पे फ्रिक्शन के प्रेजेंस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो इस पूरे सरफेस में जब व्हेन दिस ब्लॉक विल कम हियर कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 0.5 मीटर. नाउ अगेन it is given that compression in the spring is 0.5 meter. इसका मतलब और 0.5 मीटर कंप्रेशन हुआ है यहाँ पे. So total distance traveled in the presence of friction कितना है? 0.5 plus 0.5 total है 1 is equal to half k x square. x square is 0.25. Now we can solve. यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5v square minus ये आ गया 30 is equal to 25/2 मतलब 12.5. अब 5v square is equal to 30 plus 12.5, फिर इसको डिवाइड किया, v square is equal to 6 plus 2.5 और फिर आ गया v square is equal to 8.5. v is equal to root 8.5 है ना? तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई? root 8.5. तो इन प्रीवियस केस इट वाज root 2.5. In this case it is root 8.5. So let's move to the next topic. Next topic डालेंगे potential energy curve. Potential energy curve and types of equilibrium. ठीक है? Types of equilibrium. So equilibrium हमने देखा था. Equilibrium कब होता है? जब F net is equal to 0 on any system or an object. On any system or an object, if F net is equal to 0, then particle is said to be in इक्विलिब्रियम. F net is equal to 0. अब हमें पता है कि F is equal to होता है Fx I cap plus Fy j cap plus Fz k cap. ठीक है? Any force it can be taken as component in the three direction x, y and z.
So if a particle is in equilibrium or a system is in equilibrium, then Fx is equal to 0, Fy is equal to 0, Fz equal to 0. All the three forces या फिर forces in all the three directions basically should be 0. Clear? Now we have taken one expression which was relating potential energy and the force. What was that expression? F is equal to minus del u by del x I cap minus del u by del y j cap and minus del u by del z k cap. This was giving us the force, है ना? इसी से निकाला था हमने force. So अब यहाँ पे when I am saying कि force is equal to 0, force is equal to 0, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि भाई ये 0 होना चाहिए. Now let's say force is only in the direction x, force is only in x direction. तो अब यहाँ पे क्या है? Force is in only x direction, displacement सब कुछ सब यूनिट डायमेंशन है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स. ठीक है, माइनस डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स. नाउ व्हेन आई एम सेइंग इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस एफ एक्स इज इक्वल टू 0. इक्विलिब्रियम मींस एफ एक्स इज इक्वल टू 0. पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन एफ इज इक्वल टू 0. एफ इज इक्वल टू 0 मतलब माइनस डी डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 या फिर डेल यू बाई डेल एक्स is equal to 0. So this is the condition. This is the condition of force when particle is in equilibrium. This is the condition of potential energy when particle is in equilibrium. तो particle equilibrium में कब होगा? When the force will be 0 या फिर differentiation of potential energy, ठीक है, with respect to x. So basically क्या है? This is the change in potential energy with displacement. ठीक है, particle है which is moving in x direction. At every position it has different value of potential energy. So if we are moving from this point to this point, there will be some change in potential energy. When we are moving from this point to this point, there will be some change in potential energy. So यहाँ पे क्या है? Change in potential energy with respect to displacement. Change in potential energy with respect to displacement has to be 0 when particle is in equilibrium. क्या लिखेंगे? Change in potential energy, है ना? Differentiation of potential energy with respect to x. क्या होना चाहिए? इट शुड बी 0 व्हेन पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम. क्लियर है? क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो जब भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, व्हेन इट विल मूव, उसकी अगर हम पोजीशन को चेंज करेंगे, इफ वी डिस्प्लेस पार्टिकल, ये डेल यू बाय डेल एक्स का क्या मतलब है? वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम चेक करेंगे. सो इफ वी स्लाइड अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स पोजीशन, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड करते हैं या थोड़ा सा इधर स्लाइड करते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज, है ना, वो क्या होगी? सेम ही रहेगी. मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, इसके 3 कर्व बनते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के 3 कर्व बनते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा और तीसरा ऐसा. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पोटेंशियल एनर्जी with respect to x. ठीक. Now in first case देखो, when the particle is moving from here to here, this is the displacement, this is the position of the particle. तो क्या हो रहा है? जब पार्टिकल इधर जा रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? del u by del x is equal to कैसा है? पॉजिटिव, है ना. स्लोप ऑफ द del u by, इसको du, अगर सिर्फ x में है फोर्स तो हम लोग लिख सकते हैं du by dx. सिर्फ x में फोर्स है तो कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं है. सो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग, व्हेन वी आर टेकिंग du by dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ux कर्व, स्लोप ऑफ ux कर्व. यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव. यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव. एंड यहाँ पे कैसा है? इट इज 0. du by dx इज इक्वल टू 0 हियर. ठीक है, du by dx इज इक्वल टू 0 हियर. तो यहाँ पे क्या पार्टिकल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा पार्टिकल? यस. व्हाई? du by dx इज नथिंग बट इट इज force. du by dx is force. So when du by dx is 0, slope of ux curve at this point is 0. It means force at this point is 0. Force at this point is 0 and this particle is in equilibrium here. यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे force is negative because du by dx is positive and force is minus du by dx. तो यहाँ पे force कैसा है? Force is negative here. यहाँ पे force कैसा है? Force is positive here. अब इस कर्व में अगर है आए तो दिस पार्ट, इन दिस पार्ट du by dx is slope of
ux कर्व इज नेगेटिव, यहाँ पे 0. सो अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो फॉर दिस रिलेशन, अब हमें ux का कुछ भी रिलेशन गिवन हो सकता है. यस्टरडे वी हैड सॉल्व वन प्रॉब्लम जिसमें हमने u का एक्सप्रेशन लिया था जिसमें x था y था. सो देयर कैन बी एनी एक्सप्रेशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, बट जिस पॉइंट पे du, जिस पोजीशन पे, जैसे यहाँ ऑन दिस पोजीशन differentiation of u with respect to x is coming as 0. So when we have du by dx is equal to 0, that point, that particular position, that particular value of x will have the equilibrium position. Clear? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे slope is positive. Slope positive मतलब force negative. In this case, throughout the curve या फिर throughout along all the position, हर position पे क्या है? यहाँ पे du by dx is 0. कैसा है ये? u is constant, potential energy is constant. तो यहाँ पे पार्टिकल कैसा है? इक्विलिब्रियम है, हर जगह फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स 0 है, हर जगह फोर्स 0 है. तो यहाँ पे at every position particle is in equilibrium. At every position particle is in equilibrium. क्लियर है ये चीज? बट यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है. What is the difference? तो वो डिफरेंस हम देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम तीन अलग अलग सिचुएशन में अगर आ रहे हैं. So what is the difference in this equilibriums? So condition for equilibrium is change in potential energy should be 0 with displacement. If we slightly displace the particle, its potential energy change should be 0. Whatever potential energy was there in this position, if you slightly displace it, potential energy should be same. अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, अगर if you see this part, तो यहाँ पे potential energy almost उतनी होगी, यहाँ पे उतनी होगी, यहाँ पे उतनी होगी. Constant ही आ रहा है ना? For this part we can take it as constant. लेकिन अगर यहाँ पे देखो तो potential energy was something else at this point. Potential energy is something else at this point. Clear? So potential energy is changing when you move from this x to this x. When you move from this x to this x, potential energy has increased. Clear? But in this case potential energy is constant. यहाँ से यहाँ जाओगे potential energy is almost constant. यहाँ पे भी when you move from this point to this point, potential energy is almost constant. और यहाँ पे तो throughout the displacement it is constant only. तो अब what are these three equilibriums? तो उस चीज को हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? जैसे just imagine a case where you have a hill like this, फिर एक ऐसा यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन है. ठीक है? Now a ball is kept at this position, another ball is kept at this position, and one more ball is kept at this position. ठीक है? Clear? Now force on this particle, force on this block, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल. ठीक है? इट इज इन इक्विलिब्रियम. नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इट इज इन इक्विलिब्रियम. नीचे mg, ऊपर नॉर्मल, इट इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है? नाउ इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसके थोड़ा सा अगर इधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही रहेगी. थोड़ा सा अगर हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज सेम. थोड़ा सा अगर इधर जाएंगे, सोच के देखो, एक हिल पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हिल पे थोड़ा सा इतनी सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है? इतनी अगर सरफेस है पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन सेम, क्योंकि वो हाइट में बहुत स्लाइट डिफरेंस है. ठीक है? बट इफ यू स्लाइड इट, अगर थोड़ा सा हमने स्लाइड किया, इसको ऐसे धक्का दिया, क्या होगा? ये नीचे आ जाएगा. ठीक है? दूसरा, अगर इसको मैंने स्लाइड किया, इधर मैंने स्लाइड किया इसको, इट विल गो लाइक दिस, फिर वापस आ जाएगा. इस साइड स्लाइड किया तो इट विल गो लाइक दिस. इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं. ठीक है? अगर इधर स्लाइड किया तो ये वापस आ जाएगा. मतलब इसका मोशन कुछ, इधर स्लाइड करोगे तो भी वापस आएगा, इधर स्लाइड करोगे तो भी वापस आएगा. अगर इसको हमने थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, इट विल कम डाउन. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है. और थर्ड केस में अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ स्लाइड करके थोड़ा धक्का दिया तो यहाँ रह जाएगा, और थोड़ा धक्का दिया तो जहां था वहीं रह जाएगा. एंड यहाँ अगेन इट इज इन इक्विलिब्रियम. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरा नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है d² u by dx². This is to find out the maxima or minima of potential energy.
मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। हम लोग du by dx इज इक्वल टू 0 जब निकालते हैं, हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हमारे पास u एज अ फंक्शन ऑफ x है, u एज अ फंक्शन ऑफ x है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि वेयर मैक्सिमा ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी विल लाई या फिर वेयर मिनिमा ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी विल लाई। हम क्या करते हैं, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया है ना, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया du by dx, इसको हमने 0 किया, इससे हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, 2 या जितने भी पॉइंट्स आएंगे, 2-3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो इससे हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी, x1 x2 x3। नाउ व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट इट अगेन एंड वी पुट दीज वैल्यूज x1 x2 x3। तो जहां पे when d2u/dx² इज पॉजिटिव वहां पे होता है मिनिमा, जहां पे d2u/dx² इज नेगेटिव वहां पे क्या होता है, मैक्सिमा। सो व्हेन एट सर्टेन पोजीशन, दिस इज नथिंग बट, इसको आप बोल सकते हैं ना, दिस इज अ ux कर्व, जहां पे एट दिस पोजीशन एक इक्विलिब्रियम है, एट दिस पोजीशन एक इक्विलिब्रियम है, एंड एट दीज पोजीशंस अगेन इक्विलिब्रियम है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे वेयर इज द मैक्सिमम एनर्जी, वेयर इज द मिनिमम एनर्जी, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं भाई, these 3 points we got where equilibrium is lying. At this position equilibrium is there, at this position equilibrium is there, at this positions equilibrium is there. यहाँ पे क्या है, n is equal to mg. If it gets slightly displaced, अगर इसको slightly displace किया तो इस पे क्या हो जाएगा, net force will not be 0 anymore, और ये क्या होगा, फाइनली नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे इस पे क्या है, in this curve मैक्सिमम एनर्जी कहां पे है, मैक्सिमम एनर्जी इज एट दिस पॉइंट, मिनिमम एनर्जी कहां है, मिनिमम एनर्जी इज एट दिस पॉइंट, और यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट एनर्जी है, ठीक है। सो इफ यू सी केयरफुली एट दिस पॉइंट, एट नियर बाय पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी इज लेसर देन दिस पॉइंट, यहाँ पे एट नियर बाय पॉइंट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन दिस पॉइंट, सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज लेस कंपेयर टू द नियर बाय पॉइंट्स। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें, so basically this position is position of minimum potential energy, or we can say minima. This is the position of maximum potential energy, or we can say maxima, and this is the position where potential energy is same at this point, it is same as compared to the nearby points. So अब यहाँ पे देखो, when object is kept at a position where potential energy is maximum, an object is kept at a position where potential energy is maximum. If it is slightly displaced, अगर आप इसको इधर displace करो या फिर आप इसको इधर displace करो, it is going to move down, it is going to lose its potential energy, its potential energy is going to decrease. If you slightly displace this, it is going to come down like this. सोच के देखो, अगर इसको थोड़ा सा धक्का दिया, it will come down, अगर इधर थोड़ा धक्का दिया, it will come down. Clear? So if the particle has maximum potential energy, ठीक है ना, या फिर वो मैक्सिमा पे है, इसके अगर आप d2u/dx² देखो तो मैक्सिमा कब होता है, मैक्सिमा हैपेंस व्हेन d2u/dx² इज नेगेटिव, ठीक है। आपके पास 3 डिफरेंट वैल्यू आएगी, फॉर सम वैल्यू लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। तो फॉर जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जब मैक्सिमा है उस जगह पे अगर आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, इट विल मूव डाउन, ठीक है। तो ये इसको, बिकॉज यहाँ का इसका जो इक्विलिब्रियम है इट इज नॉट स्टेबल। अब स्टेबल वाला कैसा होता है, सो सी नाउ इफ यू डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट, अगर आप इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करो, या फिर आप मान लो मैंने यहाँ लाया और फिर इसको रिलीज किया, या फिर यहाँ लाया और रिलीज किया, इट इज गोइंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, जहां पे वो पहले था वो वहीं जाएगा। अगर मैंने इसको यहाँ लाया फिर रिलीज किया, या फिर यहाँ लाया और रिलीज किया, इट इज गोइंग टू बी देयर, मतलब ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा बेसिकली। तो अगर आप इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से अगर आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, d2u/dx² इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। जो भी वैल्यू रखोगे, जब आप x2 रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इफ यू डिस्प्लेस इट फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये क्या होगा, वापस यहीं आएगा, वापस इट विल गेन इट्स इक्विलिब्रियम। Will this gain its equilibrium again after displacing? No, this is not going to gain its equilibrium, but this object will gain its equilibrium. Clear है? अब मैंने इसको थोड़ा सा धक्का दिया, मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस किया, इसको मैंने यहाँ डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, इसको अगर यहाँ डिस्प्लेस किया it will lose its equilibrium, इसको अगर यहाँ डिस्प्लेस किया it will again gain its equilibrium। अगर इसको उठा के इधर डिस्प्लेस किया
तो क्या होगा, इट वॉज एट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट ऑल्सो, इट वॉज एट इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट ऑल्सो। तो ना तो वो वापस आ रहा है, ना ही वो इक्विलिब्रियम को लूज कर रहा है। सो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, या फिर इस इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसकी कंडीशन क्या होगी, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, है ना। आई एम सॉरी, मैक्सिमा वाले कंडीशन है, यहाँ पे नेगेटिव। मैक्सिमा ऑफ potential energy will be higher as compared to the nearby points. इसमें क्या होगा, this is stable equilibrium. Why? Because it is again gaining its equilibrium. It is again gaining its equilibrium. So stable equilibrium, यहाँ पे क्या होगा, d square u by dx square is positive and this is the point of minimum. और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहां पे क्या होगा, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So this is the point of unstable equilibrium, this is the point of stable equilibrium and this is the point of neutral equilibrium. Clear? So first we'll find out the points of equilibrium. How do we find out points of equilibrium? जहां पे du by dx is equal to 0. du by dx is nothing but force. So wherever the force is 0, object is in equilibrium. अब ऑब्जेक्ट कैन बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेट्स से स्प्रिंग वाला केस है, तो हमने क्या किया, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, आई अप्लाइड अ फोर्स F in this direction. Now kx is acting in this direction. So let's say the force I applied is equal to kx. The force I applied is equal to kx. So object is in equilibrium. But if I release that block, what will happen? It will move back. वो उस जगह से हट जाने वाला है। क्लियर? अगर हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो स्प्रिंग है और हमने उसको कोई फोर्स नहीं लगाया है, सो देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन, देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन। ऊपर N लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ठीक है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज इन विच इक्विलिब्रियम, ये ऑब्जेक्ट अभी इक्विलिब्रियम है, बट इफ आई विल डिस्प्लेस दिस ब्लॉक, अगर मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया एंड रिलीज किया, सो क्या होगा, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। सो पहले वाले केस में क्या था, हमने F इज इक्वल टू kx लगा के डिस्प्लेस किया, तो जैसे ही हम रिलीज करेंगे वो उस पोजीशन से भाग जाएगा। नाउ दिस ऑब्जेक्ट वाज इन इक्विलिब्रियम, देयर वाज नो फोर्स, नाउ आई डिस्प्लेस्ड इट एंड रिलीज्ड इट, तो क्या हो जाएगा, वो अपनी वापस पोजीशन में आएगा। जैसे अगर मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, इट विल मूव लाइक दिस, ऐसे आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे चुपचाप बैठ जाएगा। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, थोड़ा ऐसे ऑसिलेट करेगा एंड देन इट विल कम बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो मैंने पहले वाला केस बताया था। हमने यहाँ से रिलीज किया, वो वापस उस पोजीशन में, यहाँ से जब जैसे रिलीज किया, इट विल मूव इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, एक हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट विल डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, du by dx is equal to force होता है, when force is equal to 0, so we will get the points of equilibrium. clear है ये चीज? so points of equilibrium find out करेंगे, उसके बाद d square u by dx square निकाल के we'll put those values of x and wherever we'll get maxima there will be unstable equilibrium, जहाँ पे maxima होगा, maximum potential energy वाला, जैसे उसको डिस्प्लेस करो it will lose its potential energy और वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये देखो इस तरीके से। जब मैक्सिमा वाला कंडीशन होगा, मैक्सिमा मतलब we'll get negative, d square u by dx square is equal to negative, मैक्सिमा वाला कंडीशन and that point will be unstable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए we'll have मिनिमा और वहां पे क्या होगा, d square u by dx square is going to be positive, d square u by dx square is going to be positive and यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, and at this condition we'll get the neutral equilibrium. So now last topic which we are going to study in this chapter is power. ठीक है, work we studied, energy we studied, now power. So power क्या है, तो power is the rate of doing work या फिर rate of transferring energy. ठीक है, we are doing some work, we are transferring some energy, है ना। objects और different objects के बीच में, different systems के बीच में energy transfer हो रहा है, there are different kinds of energy, mechanical energy, electrical energy, light energy, sound energy, ठीक है। तो ये सब जो हो रहा है उसका रेट कि कितने टाइम में हो रहा है। लेट्स से अ कार इज कमिंग डाउन ऑफ फ्रॉम अ हिल, किसी हिल से नीचे आ रही है
अब लेट्स से कि उस कार को नीचे आने में 1 दिन लगा एंड किसी केस में 1 घंटा लगा। इट मीन्स जिसमें 1 दिन लगा उसमें उस कार के इंजन की पावर कुछ और रही होगी, और जिसमें 1 घंटा लगा उसमें उस कार के इंजन की पावर कुछ और रही होगी। क्लियर है ये चीज? क्योंकि इन वन केस सेम वर्क डन इज हैपनिंग इन कम टाइम, इन अनदर केस सेम वर्क डन इज हैपनिंग इन सम बिगर टाइम इंटरवल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग के पास नया टर्म आता है पावर। भाई वर्क डन हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब कोई अगर सेम जो आपको 2 साल में नीट का सिलेबस जो कंप्लीट करना है, अगर कोई इसको 4 साल में करे तो उसका तो फिर हम लोग बोलेंगे उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क इज लेस। तो हम लोग को पावर का टर्म जो है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेनेवर वी वर्क विथ मशीनरी, तो उसमें क्या है, मशीनरी शुड वर्क एट फास्टर रेट, है ना, जल्दी काम करके देना चाहिए। सो वहां से हमारे पास टर्म आता है पावर। सो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। सो P इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। जैसे हमने रेट ऑफ डूइंग डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सब हमने पढ़ा था। क्लियर? सो सिमिलरली रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, dw डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है? dw डिवाइडेड बाय dt मतलब बेसिकली अगर हम कोई काम w काम है, वर्क है, उसको t टाइम में कर रहे हैं, देन p विल बी w डिवाइडेड बाय t, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। या फिर आप बोल सकते हो पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एनर्जी एक्सेप्टेड या एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, इस तरीके से। तो बस आप पावर की डेफिनेशन ये लिख सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको रेट निकालनी है देन देयर विल बी 2 रेट्स। ठीक है, आपका एक इंस्टेंटेनियस होता है, एवरेज होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, सिमिलरली इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर विल बी, जिसको हम सिंपली P से रिप्रेजेंट करेंगे एज वी ऑलवेज डू, कि क्या हो जाएगा, dw डिवाइडेड बाय dt, and average power P average will be delta W, a big interval in which you have done a big work which is delta W, so delta W divided by delta T, and P instantaneous will be dW divided by dt. Now we know dW is nothing but F dot dr, dW is nothing but F dot dr, तो क्या हो जाएगा, ये divided by dt, so this we can write velocity, dr by dt क्या होगा, this was displacement, displacement per unit time, displacement per unit time is velocity, so it can be written as P is equal to F dot V. So now again power is, power का again आप लिख सकते हो power is scalar product of, या फिर instantaneous power। ठीक है, instantaneous power, this is what, instantaneous power, instantaneous power, so this is instantaneous power. Instantaneous power is scalar product of or dot product of force and velocity. ठीक है, where this velocity is instantaneous velocity, this velocity is instantaneous velocity. So instantaneous power is scalar product or dot product of force and instantaneous velocity. Now यहाँ पे क्या होगा, this is again this product is going to give us the scalar. यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें एक स्केलर मिलेगा। Now that can be positive, negative और zero. So if positive कब होगा, जब यहाँ पे ये positive कब होगा, जब work done will be positive, जब work done will be positive, when work done is by the force, when work done is by the force, that time work done is positive, that time power will be positive. So power क्या होगा, वो force पावर सप्लाई कर, वो फोर्स जो है एनर्जी सप्लाई कर रहा होगा एट सम रेट, या फिर वो वर्क कर रहा होगा एट सम रेट। अगर पावर नेगेटिव है इट मींस वर्क डन नेगेटिव रहा होगा, वर्क डन इज नेगेटिव, इट मींस वर्क इज डन ऑन द फोर्स, उस फोर्स पे काम कर रहे हैं। तो कोई इंजन है जो उल्टा उस फोर्स पे काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये सब तो वर्क से रिलेटेड है कि व्हेन वर्क इज पॉजिटिव इट मींस वर्क डन बाय फोर्स, वर्क इज नेगेटिव इट मींस वर्क डन ऑन द फोर्स। सिमिलरली यहाँ पे पावर का भी उसी तरीके से है, पावर जब पॉजिटिव इट मींस पावर इज बीइंग सप्लाइड, ठीक है, और पावर नेगेटिव मतलब उल्टा उसी को पावर मिल रही है, उल्टा कोई और
इंजन है, कोई और सिस्टम है विच इज सप्लाइंग द पावर टू द फोर्स टू दी दिस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे दिस पावर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होगा? अगेन दिस विल बी जीरो व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर, सेम एज वर्क डन। फोर्स एंड वेलोसिटी इनके बीच का हम क्या निकाल रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? व्हेन एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। ऐसा कब होता है? इन सर्कुलर मोशन टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो भी सर्कल है, जिस सर्कल में ऑब्जेक्ट इज मूविंग, टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, instantaneous velocity is perpendicular to the string, perpendicular to the string, perpendicular to the string. So in that case power कितना आता है? Power is zero when theta is equal to 90 degree या F and V are perpendicular, ठीक। Now units of power, so हमारे पास power is equal to क्या है? Work divided by time. It means joules per second. It is joules per second. And इसका हमने नया नाम दिया है वॉट। जेम्स वॉट, जिनने ये पावर के बारे में स्टडी किया था। और उनके उसका सिंबल हम लिखेंगे W, कैपिटल W। सो पावर के यूनिट्स क्या होंगे? जूल्स पर सेकेंड और वॉट, क्लियर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला आइदर यू कैलकुलेट फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, आपकी मर्जी। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V। दिस इज व्हाट? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो m l t minus 2, this is meter per second, l t minus 1. So dimensional formula of power will be ml2 t minus 3, ml2 t minus 3. This will be the dimensional formula. Units आ गया वॉट। अब इसके जो प्रैक्टिकल यूनिट्स भी यूज इन डेली लाइफ वो होते हैं किलोवाट, जो कि आपके जो अपने जो सबस्टेशंस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग सप्लाइड, ठीक है। जो बड़े बड़े सबस्टेशन होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड एंड सप्लाइड। आपके घर में जो वाटर पंप होते हैं उनका भी जो रेटिंग्स होता है कभी कभी वॉट में होता है। जो बल्ब्स होते हैं, बल्ब की रेटिंग वॉट में होती है। सो दीज आर दी, जब आपके पास छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी रेटिंग्स वॉट में गिवन होती है। व्हेन यू हैव बिग इक्विपमेंट्स या फिर आप बड़े लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर की जब आप बात करते हो, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी बीइंग सप्लाइड। पावर इज नथिंग बट ये क्या है? एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो जब आप बड़े लेवल पे एनर्जी सप्लाई करते हो, जैसे सबस्टेशंस में इससे एनर्जी जब जाती है तो वहां पे किलोवाट, मेगावाट, इन सब टर्म्स का यूज होता है। किलोवाट, मेगावाट। वैसे ही हॉर्स पावर इज यूज्ड फॉर वाटर पंप्स जो हमारे घर में यूज होते हैं। So these are the practically used units of power. So 1 kilowatt is definitely 1000 watt होगा ये। 1 megawatt is 10 to the power 6 watt, ये है 10 to the power 3 watt, ये है 10 to the power 6 watt, and 1 horsepower is equal to होता है 746 watt। 746 watt, 1 horsepower is equal to 746 watt। तो ये आप लिख सकते हो, क्लियर है। सो पावर के बारे में मतलब बहुत ज्यादा हम लोग को कोई उसके पीछे पड़ना नहीं है, बस इतनी छोटी सी ही बातें हैं अबाउट पावर, एंड वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। दैट्स इट अबाउट द वर्क पावर एनर्जी। सो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं एक के बाद एक। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a is equal to 4 meter per second square. Then find out the average power of the force in t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. ठीक है। A block of mass 1 kg starts moving with constant acceleration 4 meter per second square. Find average power in t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. तो यहाँ पे क्या है? Acceleration is given as 4 meter per second square. ठीक है। And t is equal to 0 to t is equal to 4 second में 2 second में we have to find out the average power. So what we'll do? We have time कितना है? t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. It means we have total time 2 seconds. Now we just want to find out the work done in those 2 seconds so that we'll be able to find out power of the force. So यहाँ पे for calculating work done, what do we need? Force into displacement. ये जो motion है it is in straight line, force and displacement are in the same direction. ठीक। तो यहाँ पे work done, अब force कैसे निकालें? तो force हमारे पास आ जाएगा mass into acceleration. Acceleration is 4, mass is 1, so 1 into 4
into displacement. Displacement how we'll calculate? U is 0, A is 4 and T is 2 seconds. So S is equal to half A T square. क्या है हमारे पास? 8 मीटर. So displacement is 8 meter. Work is 32 joules and time is 2 seconds. So average power P average is equal to, average power in those 2 seconds will be P average is equal to 32 divided by 2. It is 16 watt. It is 16 watt. Now second question is find out the instantaneous power at t is equal to 4 seconds. Second part is find P instantaneous at t is equal to 4 seconds. तो P instantaneous क्या होता है? P instantaneous is F dot V. Now यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या है? It is 0. So ये हो जाएगा FV. F कितना आया है हमारे पास? 4 into 1 mass into acceleration. Now velocity, if I'll be able to find out in instantaneous velocity at t is equal to 4 second, तो हमें क्या मिल जाएगा? F dot V मिल जाएगा. तो V at t is equal to 4 second. t is equal to 4 second. क्या होगा? V is equal to होता है U plus AT. U is 0. तो V is equal to क्या हो जाएगा? A is 4, T is 4. V is equal to 16 मीटर पर सेकेंड. अब सीधा भी कर सकते थे भाई, at t is equal to 0 velocity is 0 and rate of change of velocity is 4 meter per second square. It means every second velocity is changing by 4. In 4 second it will increase to 16 meter per second. So final velocity is 16 meter per second. So at t is equal to 4 second, P instantaneous is equal to force into V instantaneous. तो कितना आ गया? 64 watt. कितना आया? 64 watt. Next है a pump can take 3600 kg. A pump can take 3600 kg of water from 100 meter deep well. A pump can take 3600 of water from 100 meter deep well in 1 hour. Find power of the pump. In second problem we have 3600 kg water is being pumped out from 100 meter deep well. So basically what that pump is doing, it is extracting water from 100 meter depth. So it will have to do work against gravity. कुछ ना कुछ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी करना पड़ेगा तभी वाटर ऊपर आएगा. सो यहाँ पे हमें बोला है कि इट इज हैपनिंग इन 1 आवर. 1 घंटे में वो इतना काम कर रहा है. देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ द इंजन? तो पावर कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो टोटल वर्क डन क्या है? व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम मास m टू सम हाइट h, है ना. तो वर्क डन क्या होगा? mgh. उसको यहां से ऊपर लाने में क्या वर्क डन होगा? mgh. हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट ग्रेविटी? कितना? mgh. तो m कितना है? 3600. g कितना है? 10. h is 100 and this is the joule, this is work done which is in joule and हमें जूल पर सेकेंड निकालना होता है. तो क्या हो गया? 1 hour is 3600 seconds. तो कितना आ जाएगा? 1000 joule. It means 1000 joule per second. It means 1000 watt. It means 1 kilowatt. It is 1 kilowatt. Clear है ये चीज? तो पावर ऑफ इंजन कितना है? It is 1 kilowatt. 1 kilowatt का पावर है उस इंजन का. Now next question is, if a pump is required to lift 360 kg of water per minute. ठीक है? A pump is required to lift 360 kg of water per minute from a well of 20 meter depth. From a well of 20 meter depth. And eject it with speed 20 meter per second. And eject the water with speed 20 meter per second. Then what is the power of the engine? Now in this case what we were doing, we were just bringing the water up. सिर्फ हम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे थे, ठीक है, और हम लोग उस वाटर को ऊपर लेके आ रहे थे. So क्या करना पड़ेगा? Basically what we are doing, we are increasing the potential energy of water ना. It was kept at some level. वहां से we are bringing it to 100 meter height. So let's say that level is reference and from there we are bringing it 100 meter above. तो उसका क्या होगा? Potential energy will increase. How that potential energy will increase? We are doing some work, so its potential energy is increasing. Clear? Now in this case what we are doing, we are bringing the water up
प्लस वी आर प्रोवाइडिंग इट सम वेलोसिटी, वी आर इजेक्टिंग द वाटर, कहीं पे सप्लाई करना होगा, मे बी इन सम फील्ड और समथिंग वी हैव टू सप्लाई सम वाटर, तो किसी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वी आर इजेक्टिंग द वाटर. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रिंग दिस मच ऑफ वाटर फ्रॉम दैट लेवल टू दिस हाइट 20 मीटर अबोव. तो उसमें हमें वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी भी करना है, प्लस वी हैव टू सप्लाई इट सम काइनेटिक एनर्जी, दिस मच काइनेटिक एनर्जी वी विल हैव टू सप्लाई. एंड वो कितने देर में करना है, पर मिनट वी हैव टू डू दिस, पर मिनट, एवरी मिनट वी हैव टू डू दिस. सो पावर क्या हो जाएगा, पावर विल बी इक्वल टू व्हाट इज द टोटल एनर्जी. तो यहाँ पे क्या है, टोटल क्या काम हो रहा है, जो पंप है व्हाट द पंप इज डूइंग, इट इज ब्रिंगिंग द वाटर अप प्लस इट इज सप्लाइंग द काइनेटिक एनर्जी. वो पंप ही करेगा, दैट एनर्जी कैन बी सप्लाइड यूजिंग पंप ओनली. इट मींस वर्क डन बाय पंप विल बी इक्वल टू सप्लाइड काइनेटिक एनर्जी टू द वाटर. जो भी पंप ने वर्क किया, क्या क्या वर्क किया, इट इज ब्रिंगिंग द वाटर अप प्लस इट इज गिविंग द काइनेटिक एनर्जी. सो हाउ मच वर्क इट इज डूइंग, सो mgh this is the work done to bring the water up plus half mv square. This is the total work which is the pump is doing. In how much time? It is doing in 60 seconds. बस इसको सॉल्व कर लेंगे. कितना आया हमारे पास, 1200 प्लस 1200, दिस इज इक्वल टू 2400 वॉट. इसका मतलब पावर ऑफ द इंजन विच इज रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क, इट इज 2.4 किलो वॉट. द इंजन रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क इज 2.4 किलो वॉट. ठीक है. नेक्स्ट इसमें आता है एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी इज नथिंग बट, एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफिशिएंसी वर्ड से समझ में आया, कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाटएवर वर्क वी आर गेटिंग एज आउटपुट एंड व्हाटएवर एनर्जी वाज सप्लाइड. सो इनपुट कितना दिया हमने और आउटपुट कितना मिल रहा है, एफिशिएंसी वहां से आती है. अगर आप जितना इनपुट दे रहे हो यू आर गेटिंग द एग्जैक्ट उतना ही आउटपुट, तो क्या होगा, एफिशिएंसी विल बी 100%, 100% एफिशिएंट. लेकिन 100% एफिशिएंट तो कोई भी चीज नहीं होती है. बेसिकली जितना भी इनपुट देते हैं क्लास में, आपको जितना इनपुट मिलता है यू आर नॉट एबल टू गेट द कंप्लीट आउटपुट फ्रॉम दैट. ऐसा होता है ना, हम सब कुछ पढ़ते हैं बट फिर भी सारी चीज याद नहीं रहती. एग्जाम में एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं आती. सो ये टर्म उसी से रिलेटेड है कि हाउ मच इनपुट वी आर गिविंग एंड हाउ मच आउटपुट वी आर गेटिंग. सो एफिशिएंसी इज represented by eta is equal to work output divided by energy input. If you want to find out it in percentage, then percentage eta efficiency यहाँ लिख लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे 100, तो ये मिल जाएगा हमें परसेंटेज एफिशिएंसी. ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे लिख लेंगे. पावर ऑफ अ इंजन इज 400 वॉट, पावर ऑफ अ इंजन इज 400 वॉट एंड एफिशिएंसी इज 75%. एफिशिएंसी 75% इज यूज्ड टू रेज वाटर बाय 40 मीटर. इट इज यूज्ड टू रेज वाटर बाय 40 मीटर. फाइंड द मास ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 मिनट्स. फाइंड द मास ऑफ वाटर ड्रॉन इन 10 मिनट्स. हमारे पास टाइम कितना है, 10 मिनट्स. सो पावर कितना है, 400 वॉट, 400 जूल पर सेकेंड. दिस इज द पावर ऑफ इंजन. एट दिस रेट इंजन इज सप्लाइंग द पावर. ठीक है, बट इट हैज ओनली 75% एफिशिएंसी. 100% एफिशिएंसी होता मतलब whatever energy is being supplied, complete energy will get used, but we have 75% efficiency, मतलब 25% is gone. कहीं मे बी इंजन में क्या होते हैं, देयर आर फ्रिक्शंस, बहुत सारे फ्रिक्शन वगैरह होता है ना उस इंजन में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो अगर 75% एफिशिएंसी ही है, इसका मतलब व्हाट वी आर डूइंग, टोटल पावर का वी आर एबल टू यूज ओनली 75%. टोटल पावर का ओनली 75% वी आर एबल टू यूज. सो व्हाट इज द 75% ऑफ दिस पावर? सो पावर विच कैन बी यूज्ड is 75% of 400 joule per second या 400 watt. तो 75% of 400 कितना आएगा? It will be
300 watt या 300 joule per second. So basically this was the power, but we are able to use only 75%. So the real power which is being used is 300 joules per second. इतना, या फिर आप बोल सकते हो per second we are doing this much work. Per second कितना काम कर रहा है पंप? 300 joule. Clear? Per second it is doing 300 joule. तो यहाँ पे काम क्या करना है? काम is mgh. What we have to do? We have to bring m mass to h height. So work done will be mgh. ठीक है, mgh. अब पर सेकेंड यहाँ पे अगर हम देखें तो we have to do mgh. Let's say हम लोग बात करते हैं 1 सेकेंड में हम कितना पावर यूज कर सकते हैं? 300 जूल. और वो कहाँ यूज होना है? इट इज गोइंग टू यूज इन mgh. इसका मतलब पर सेकेंड आई कैन ब्रिंग m अमाउंट ऑफ वाटर टू हाइट h. ठीक है, मैंने कहा कि भाई 1 सेकेंड में आई एम ब्रिंगिंग m मास ऑफ वाटर टू हाइट h. सो वर्क डन इन 1 सेकेंड विल बी mgh. ठीक है, work done in 1 second is mgh. Now how much work the engine is doing? How much work the engine is doing per second? It is doing 300 joule. तो किसके इक्वल होना चाहिए? 300 joule. We have to do this much work in 1 second. 1 second में कितना करना है? This much work we have to do. How much power we have? 300. मतलब engine is doing basically 300 joule per second. कितना वर्क कर रहा है? 300 joule per second. और वो क्या है वर्क? mgh. तो per second, let's say per second I am bringing m mass up the ground जो भी है. तो यहाँ पे क्या होगा? 1 सेकेंड में mgh वर्क इज डन एंड 1 सेकेंड में इंजन इज डूइंग 300 जूल. तो दोनों इक्वल होने चाहिए. तो यहाँ से हमारे पास क्या गया? g से ये गया mh इज नथिंग बट 40. तो यहाँ से ये गया m इज इक्वल टू आ गया 3/4. m इज इक्वल टू 3/4 kg. सो 1 सेकेंड में वी आर ब्रिंगिंग 3/4 kg मास. तो हमारे पास कितने हैं? 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स मतलब 10 into 60 seconds. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3/4 into 10 into 60. क्या आ गया ये? 450 kg. So 450 kg of mass we can bring in 10 minutes. 10 minutes में we'll be able to lift the 450 kg of mass from this height. If we have the power of engine 400 watt and efficiency of engine 75%. Now let's say कि if efficiency is 100%, there are no loss. Efficiency is 100%. Then how much mass we can bring? तब हम कितना ला सकते हैं? तब भी let's say 1 second में I am bringing m mass. 1 second में I am bringing m mass. तो 1 second में how much this pump is working? 400 joule. It means 400 काम कर सकते हैं 400 joule. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? This will be 1 kg. 1 kg मतलब यहाँ पे 1 kg, यहाँ पे 1 and this will be 600 kg. 600 kg of mass will be able to lift if the efficiency of system is 100%. Clear है? So definitely when efficiency will be more, we'll be able to work more, we'll be able to lift more amount of water. I hope clear है आपको. Next question is a car of 100 kg. A car of 100 kg is moving with 36 km per hour. A car of mass 100 kg is moving with velocity 36 km per hour on a straight road. On a straight road, doubles its speed in 1 minute. Doubles its speed in 1 minute. Find out the power of the engine. Find out the power of the engine to do this. So, mass of the car is 100 kg, velocity is 36 km per hour. If we convert it into meter per second, क्या हो जाएगा? 36 into 5/18. It will be 2 meter per second. It will be 2 meter per second. So velocity is doubled. It means 4 meter per second हो गया. Sorry, 20 meter per second. This will be 40 meter per second. है ना? Oh. What we have? 10 meter per second and this is, so if we convert it into the meter per second, then we'll get 10 meter per second and when velocity is doubled it will be 20 meter per second. So now what basically is happening? The engine is supplying some energy and its velocity is getting doubled. तो क्या हो रहा है? Work done by engine, work done by force
work done by engine is change in its kinetic energy. So how much work is done is equal to delta KE. Delta KE. तो यहाँ पे क्या जाएगा हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा हाफ 100 v फाइनल स्क्वायर इज 400 माइनस 100. तो ये आ गया 50 into 300. 15 into 300. So 15,000. So work done is 15,000 and this is happening in 1 minute. तो पावर कितना हो जाएगा 15,000 जूल डिवाइडेड बाय 1 मिनट में 60 सेकेंड्स. watt. The power of the engine will be 250 watt. क्लियर है ये चीज. तो इसमें बहुत सिंपल प्रॉब्लम ही आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं आते हैं इन दी पावर कंसेप्ट. तो आई होप आपको ये क्लियर है. और एक छोटी सी चीज इसमें जो है कि हमें पता है कि पावर और वर्क के बीच में रिलेशन क्या है. पावर इज नथिंग बट dw by dt एंड वी कैन राइट dw is equal to p dt where this is instantaneous power, है ना. So if we have a WT graph, if we have a work time graph like this, या फिर कुछ भी हो, तो इसका स्लोप क्या देगा. if this is work and this is time, slope of work time graph, slope of work and time graph will give us the instantaneous power. Slope of work time graph will give us the instantaneous power and area under power time graph कुछ भी है मान लो, तो area under power time graph will give us the work done, total work done. तो area under power time graph will give us the total work done and slope of the work time graph will give us the power at any instant. क्लियर है. तो these are some points about power. हम लोगों ने वर्क एनर्जी एंड पावर का अच्छे से हमने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लिए हैं. नाउ विल बी सॉल्विंग योर शीट सॉल्यूशन. आपके जो भी शीट है उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे. सो कीप ऑन डूइंग होमवर्क्स एंड असाइनमेंट्स एंड क्विजेस ऑन टाइम. अच्छे से प्रैक्टिस करो. डू दिस चैप्टर प्रॉपरली क्योंकि एनर्जी एंड वर्क का कंसेप्ट हर जगह यूज होने वाला है. आप जब SHM पढ़ोगे, आप जब वेव्स पढ़ोगे, आप जब इलास्टिसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, हर जगह एनर्जी का कंसेप्ट यूज होने वाला है. हर जगह आप एनर्जी यूज करेंगे. ठीक है. वहां पे पोटेंशियल एनर्जीज आएंगी, काइनेटिक एनर्जीज आएंगी. सो व्हेन यू विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी. ठीक है. तो ये सब चीजें जो वर्क पावर एनर्जी में आपने जो पढ़ा है इसका कंसेप्ट बहुत सारी जगह यूज होने वाला है. So do it properly. Work energy theorem, उसके बाद conservation of energy, and if you have any loss, then initially whatever energy you had minus loss is equal to final energy. Now see कि where the energy is getting stored. Initially, in which form energy was there? Like we did one example in which initially energy was in the form of kinetic energy, and there was some loss, and finally the energy was stored as spring potential energy. So ये concept एकदम अच्छे से आपको आने चाहिए. सो अच्छे से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड स्टडी वेल, वर्क हार्ड. थैंक यू.